माननीय डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन। Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on Bharatiya Vayuyan Videk 2024. Sir, it is, even I am feeling it so difficult to pronounce, sir. I don't know why the government is using Hindi names in English script. The name should be reflective of contents of the bill, sir. It should be easily understandable and accessible to everyone. In fact, nearly 60% of India's population is non-Hindi speaking, sir. And by doing this, you are deploying at the very threshold the majority of our country's population to comprehend what is there in the bill. This is an exclusionary trend, sir, excluding everyone others. We should actually try and see that everyone is included while naming the bill itself. I want to put this on record. The very same bill, when it had come in 1934, it was called as Aircrafts Act 1934 and Vayuyan Adhiniyam 1934 in Hindi also. Why don't we name the bills both in Hindi and English? I think this is an exclusionary tactic. We should do away with it, sir. I know, Mawallo. Sir, now I come to the contents of the bill, sir. This bill broadly aims at manufacture, maintenance, safety, streamlining operation, and establishes regulatory bodies which give broader powers to the union government, sir. This bill retains the regulatory structure and most provisions of the previous Act of 1934 and subsequent amendments thereto. The Honourable agencies, members, please settle down. Honourable members. The agencies, including DGCA, BCAS and AAIB, are not new agencies but the existing ones. However, the main question arises, how much independence and autonomy would such agencies have? Given the government's tendency of centralizing everything, this is a matter of grave concern, sir. The bill adds that appeals against an order of DGCA or BCAS will lie before the union government. No further appeals will be allowed against the order of the union government. So it remains to be seen how much independently and professionally would such agency be able to function while being under direct control of the union government. Therefore, there is also a need to include provisions for establishing independent regulatory bodies with the mandate of ensuring compliance and investigating incidents, thus facilitating independent oversight mechanism, sir. अब एविएशन सेफ्टी का भी आप देखेंगे तो सर, जनवरी 2024 में रिवाइज्ड फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL, what is called as FDTL, रेगुलेशन लाए गए थे for increased rest periods for pilots, redefined night duties and so on, sir. लेकिन मार्च 2024 में ही एयरलाइन कंपनीज के प्रेशर में आकर सरकार ने इन रेगुलेशंस को इंडेफिनेटली डिले कर दी. आज तक वो रेगुलेशंस लाए नहीं गए, नहीं लागू किए, सर. In Section 2, there is a need to incorporate provisions specifically for drones and UAVs, sir. Unmanned aerial vehicles, owing to their unique operational risk and regulatory needs, sir. Further, provisions may be incorporated which facilitate use of sustainable aviation fuels, green technologies, and practices that reduce the environmental impact on aviation. Impact of aviation, sir. मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि डीजी यात्रा सिस्टम में जो फेशियल रिकग्निशन रिलेटेड प्राइवेसी और सर्वेलेंस इश्यूज आ रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए. इसके साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए appropriate measures लेना चाहिए. Further, that a dispute resolution framework needs to be worked out between airlines and passengers as well as other stakeholders, sir. Other than the substantial provisions of the bills, there are many other issues in the sector that needs to be addressed and also challenges that need to be met, sir. Sir, in the past, governments were more interested in actual development and development for the masses, sir. इस संदर्भ में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नेहरू जी के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे
और दूसरे जो सरकारें थे उनके टाइम पे भी जो काम किया गया था, चाहे वो डैम्स हो, हाईवेज हो, ब्रिजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, वो आज तक भी कायम है। कोई शिकायत आज तक आई नहीं। वहां पे क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी का भी ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज ये सरकार ज्यादातर इंटरेस्टेड है अपने नंबर बढ़ाने में, पीता काटने में और मोदी जी की इमेज चमकाने में इंटरेस्टेड है सर। इसीलिए आज हिंदुस्तान का ये हाल है। जहां जहां ये हाथ रख देते हैं, फीता काट के आते हैं, वो सब गिरना चालू हो जाता है। एयरपोर्ट गिरते हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट देख लीजिए, राजकोट एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट, सब जगह सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं। ब्रिजेस गिरते हैं, लाखों करोड़ों के हाईवेज में गड्ढे पड़ जाते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल है। अब हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी क्या हाल हुआ था, पानी टपक रहा था, आपको खुद पता है। सर, दिस गवर्नमेंट हैज बीन एनकरेजिंग क्रोनी कैपिटलिज्म इन दिस कंट्री, has given the aviation sector in a platter to few friends of it. ये मंत्रालय ऐसा मंत्रालय हो गया है कि इसका अपना कुछ है नहीं। ना तो इनके पास एयरपोर्ट है इस मंत्रालय में, ना एयरक्राफ्ट है सर। सिर्फ मंत्री हमारे हैं, वो भी हमारे तेलुगु स्पीकिंग है, हमारे मंत्री हैं। सिर्फ मंत्री एक बचे हुए हैं, ना एयरपोर्ट है, ना एयरक्राफ्ट है। आज सिर्फ 2 कंपनियों का एयरलाइन सेक्टर पे कब्जा है। In the country, airports have increased, air traffic has increased. However, the prices have also continuously increased, sir. Government is allowing private airlines to steal money from the pocket of poor man. मोदी जी क्या कहते थे? जो हवाई चप्पल पहनकर घूमता है, वो हवाई जहाज में दिखाई देना चाहिए, ये मेरा सपना है। क्या हुआ इन बड़ी बड़ी बातों का? आज हालात ये है, किसी भी सेक्टर में 20,000 से 30,000 से कम में टिकट नहीं मिलती है सर। 20,000 से 30,000 के कम में टिकट नहीं मिलती। 50,000, 70,000, 1 लाख तक भी जारी है। हवाई चप्पल वाले कहां से हवाई जहाज में घूम पाएंगे? सरकार हमें बताएं। उड़ान स्कीम का क्या हुआ? उड़ान स्कीम का क्या हुआ? हवाई चप्पल वाले तो भूल जाए, उड़ान रेट्स में 200% इंक्रीज हुआ सर। उड़ान के रूट्स पे जो प्राइसेस हैं 200% से ज्यादा बढ़े हुए हैं। आज उड़ान स्कीम की बात कर रहे थे मंत्री जी, 50% से ज्यादा रूट्स ऑपरेशनल नहीं है। सरकार ने बोला कि उड़ान के अंडर 74 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ 11 एयरपोर्ट स्क्रैच से बनाए गए हैं। दैट इज वाई आई सेड कि सरकार में लोगों के विकास के लिए नहीं, सिर्फ नंबर बढ़ाने की बात होती है। मोदी जी के इमेज को चमकाने की बात होती है, उसी की कोशिश होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पूर्णिया, भागलपुर, मालदा एयरपोर्ट का क्या हुआ? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने मुजफ्फर एयरपोर्ट का वादा किया था, उसका क्या हुआ? सर, मेरे स्टेट में कर्नाटका में विजयपुरा, हासन, रायचूर, कारवार और मेरे डिस्ट्रिक्ट बल्लारी में वहां के एयरपोर्ट्स का क्या हुआ? कब आएंगे, कब बनेंगे? ये अनाउंस करके भी एक डिकेड खत्म हो गया। इसी तरह से एक और मोनोपोली एयरपोर्ट ओनर्स की भी है। ऐसा लग रहा है कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है, AA नहीं, ये AAA इसको बना देना चाहिए था। अदानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाकर ये बनकर रह गई है। 2019 में मोदी जी ने मेजर एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ अपने जिगरी मित्र को दे दिया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग के प्रोसेस के टाइम पर अपनी आपत्ति जताई थी। जब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी ने प्रपोजल आया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा कि एक बिल्डर को सिर्फ 2 एयरपोर्ट दिया जाना चाहिए। तो इनको 6 एयरपोर्ट कैसा दिया गया है, ये सरकार को, इस देश को बताना चाहिए। लेकिन मोदी जी कहां मानते हैं? 2 एयरपोर्ट की बात तो उन्होंने कहा था, मोदी जी तो मानेंगे नहीं, अपने मित्र को 6 एयरपोर्ट उठा के दे दिए।
और इसके अलावा नीति आयोग ने यह भी कहा था कि उन्हें बिल्डर विदाउट सफिशिएंट टेक्निकल कैपेसिटी को कोई प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए। अब पता नहीं अदानी जी को कितना टेक्निकल सपोर्ट था, टेक्निकल कैपेसिटी थी, पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, कितना वो ट्रेन थे, पता नहीं क्या था कि उनको उठा के 6 एयरपोर्ट दे दिए गए। इन एयरपोर्ट पर आम जनता लूट रही है सर, क्योंकि ये प्राइवेटाइज हो गए, आम जनता लूट रही है। आप पार्किंग फीस देख लीजिए, पार्किंग चार्जेस देख लीजिए, यूजर डेवलपमेंट फीस देख लीजिए, लैंडिंग फीस देख लीजिए, कई गुना बढ़ गई है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, लखनऊ एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट लैंडिंग फीस, एयरक्राफ्ट पार्किंग फीस जो है 418% से लेकर 471% तक बढ़ गई है। इसी तरह से हिंदुस्तान के कई एयरपोर्ट पे ये जो यूजर फीस थे कई गुना बढ़ गए हैं। ये इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कंप्लीटली प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो गए हैं। एक मित्र को तो इस तरह मदद किए, अब दूसरे मित्र की बात है कि उनके एक प्राइवेट इवेंट पे जामनगर एयरपोर्ट पे ओवरनाइट रिपेयर हो जाता है, एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है, 600 फ्लाइट्स को उतारा जाता है वहां पे। तो लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए, अपने चंद क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रंट्स के लिए काम करना शुरू किए। इस सेक्टर को भी उन्हीं लोगों के हाथ में सौंप दिया गया है। अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बीजेपी सरकार 25 और एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करने की बात की है और प्लानिंग कर रही है। और उसके साथ साथ में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट्स में स्टेक्स भी प्राइवेट कंपनीज को देने की बात की है। यहां पे भी इनके जो मित्र हैं अदानी साहब, वो कह रहे हैं कि हम 25 के 25 में हम जो है दावा ठोकेंगे। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, मैं यकीन से कह सकता हूं, वो किसी के सुनेंगे नहीं, वो 25 के 25 जो है अपने मित्र को आगे आने वाले दिनों में दे के रहेंगे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है सर, कीनिया में भारी विरोध के बाद अदानी के कंपनी को जो एयरपोर्ट दिया गया था उसको विड्रॉ कर लेते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारे देश में जब हम मांग करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर मांग करती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, वहां पे कोई जो है उनकी कोई इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरे देश में अग्रीमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ठेके पे ठेका उनको दिया जा रहा है सर। यूएसए तक में अदानी ग्रुप के भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन, ब्राइबरी के चार्जर्स को लेके इंडिक्ट किया गया है। 2030 करोड़ रुपए की ब्राइबरी के चार्जर्स हैं। इसमें केंद्र सरकार की पीएसयू, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल भी पाया गया है। इससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भी सबके सामने आया है। उसमें स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, शेल कंपनीज, ओवर इनवॉइसिंग के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन सरकारी एजेंसीज और सेबी का इसमें मामला भी आया गया है। लेकिन इसके रोल पे सर, आई एम कंप्लीटिंग सर, सेबी चीज के भी रोल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में सवाल उठाया गया है। सर अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी शेल कंपनीज में डाले गए थे वो किसके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश के जो हुक्मरान हैं उनका पैसा उन शेल कंपनीज के थ्रू रूटेड किया गया था। Honorable member, please speak on the bill. दिस इज ऑन द बिल ओनली सर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं वहां अपने दोस्त को ले जाते हैं और ठेका दिलाते हैं। मैं आपको डेट्स के साथ आपको कहना चाहता हूं, मुझे हम लोग को ये पता नहीं चल रहा कि प्रधानमंत्री क्या हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर है या अदानी के बिजनेस प्रमोटर है। Point of order, 1 second, point of order, वाजपेयी जी। रूल नंबर ये बिल पर नहीं बोलना है, इसको रिकॉर्ड पर नहीं लाना चाहिए। कौन से रूल नंबर के तहत? रिकॉर्ड पर नहीं लाना चाहिए। 1 सेकंड, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आप बैठ जाइए। जो भी बोल रहे हैं रूल नंबर कौन से रूल के तहत माननीय वाजपेयी जी? सर, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, बिल के बाहर बोल रहे हैं। चेयरमैन साहब, यू हैव टू साइट द रूल। ऑथेंटिकेट करेंगे सर। रूल नंबर आपको साइट करना ऑथेंटिकेट करेंगे सर ये पूरा हिंदुस्तान नहीं एक मिनट मैम सर, ये पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है
कि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया भर में घूमते हैं, क्या हमारी देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बिजनेस प्रमोटर हैं, ये जानना चाहते हैं हमारे। मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं, वहां अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मलेशिया में जाते हैं वहां कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इजराइल, सिंगापुर, नेपाल, तंजानिया जाते हैं वहां कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। श्रीलंका में तो सीनियर अधिकारी ने पार्लियामेंट्री पैनल को कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके प्रेसिडेंट को फोन करके रिकमेंडेशन करने का काम किया था। ये बात और है कि उसको करके वापस लेना दिया गया है। ऑनरेबल श्री तिवारी जी, रूल नंबर 110 सर, मैं एक एक लाइन पढ़ देता हूं आपकी सुविधा के लिए। इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को पारित किया जाए, चर्चा विधेयक के समर्थन में या विधेयक अस्वीकृत करने के लिए दिए गए तर्कों तक सीमित रहेगी। मैं बिल्कुल सहमत हूं। सर, एविएशन हमारा भारतीय वायुयान विधेयक पे चर्चा हो रही है। वायुयान विधेयक पे जो लोग इसके ऑपरेटर हैं, प्रमोटर हैं या इससे कंसर्न है, जैसे मैं लखनऊ का रहने वाला, वहां का एयरपोर्ट अडानी का एयरपोर्ट है, तो क्या लखनऊ पे चर्चा इसलिए न हो कि वो अडानी का एयरपोर्ट, अडानी ना हो गए, इनके मालिक हो गए कि उन पे चर्चा करने ही नहीं देंगे साहब। ऑनरेबल तिवारी जी, ऑनरेबल तिवारी जी, आई हैव टेकन नोट ऑफ योर पॉइंट। आपने पॉइंट रख लिया है सर, मैं अपनी बात सर, जब भारतीय वायुयान पे चर्चा होगी तो उसके ऑपरेटर पे भी चर्चा होगी, प्रमोटर पर भी चर्चा होगी, उसके मालिक पर भी चर्चा होगी और उसकी कार्रवाई पे भी चर्चा होगी। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि इस चर्चा को बैठ जाओ। ऑनरेबल मेंबर, वन सेकंड, आई हैव टेकन योर पॉइंट। आपका पॉइंट मैंने ले लिया है, मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है जी कि अगर भारतीय वायुयान विधेयक पर चर्चा होगी तो जो लोग उसके ऑपरेटर, प्रमोटर दोनों हैं, क्या बिना उनका नाम लिए चर्चा हो सकती है? एक चीज, और दूसरा, क्या अडानी वर्ड पार्लियामेंट्री है या अनपार्लियामेंट्री? ऑनरेबल मेंबर श्री तिवारी जी, आई विल कम टू यू इन अ सेकंड। लेट मी जस्ट, यस प्लीज, ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ही इज ट्राइंग टू मिसलीड द हाउस। कोई किसी का मालिक नहीं है सर, ये पूरा जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट का पास है और हम लीज पे ही देते हैं, वो ऑपरेट के लिए देते हैं। कोई मालिक ऐसे नहीं बन जाता सर। दिस होल लैंड इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, सो ही हैज टू टेक बैक हिज वर्ड्स। Honorable members, let me make it very clear. Okay, I've heard you. I've heard you. I'm not allowing any more other members. I'll go to. No, please, Mani Dangi ji, I am making a very clear ruling. As per Rule 110, whatever is part 110, पहले मैं 110 पे हूँ. Mani Jangra ji, बैठ जाइए. As per 110, whatever is within the scope of the bill will be examined. And whatever wasn't within the scope of, because it was not only referring to the operator, there were several references made which talked about foreign policy as well. You would admit, sir. I agree with you on the point that you are saying on operator. Honorable member will authenticate every statement here. It's made. Honorable member, please continue. सर, मुझे ये नहीं समझ में, सर। Absolutely, I take your point. He's referring to the other thing. सर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था। क्या बिजनेस प्रमोट, क्या अडानी अनपार्लियामेंट्री था? क्या बिजनेस प्रमोटर अनपार्लियामेंट्री था? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जा रहा कि एक आदमी के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, क्या ये अनपार्लियामेंट्री था? मैं जानना चाहता हूं क्या अनपार्लियामेंट्री है, मैं जानना चाहता हूं। क्या सर, क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि हमारे, क्या ये सच नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, वहां पे अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, श्रीलंका जाते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मलेशिया जाते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सिंगापुर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, नेपाल, तंजानिया। Honorable leader of the house, I'm sorry, I cannot allow you this way. No, you are sensationalizing now. Now you are sensationalizing. Honorable member, please continue.
Honorable member, please continue. Speak on the aircraft bill. Sir, nothing is unparliamentary in this. Please, Nothing is unparliamentary in this. Please continue. I have Please not continue. used a single word that One is second. unparliamentary, sir. 1 second. As an ambassador of somebody, can it be said like this? Sir, I tell Can you. it be said like this? Sir, I am authenticating. It cannot be done, Sir, It will not be part whichever is not relevant. Please continue. Please sir, continue, member. is it not true that this person whom I am naming was taken in the same aircraft by the Prime Minister to several places, to several countries? Honorable Is member, it as members have not said, we'll true? have to Is it authenticate not that. true wherever our Prime Minister went, in that country the person has got contract? Is it not true that the Sri Lankan official has officially said Honorable that there was a member. call from the highest office of our land to the Rashtrapati of Sri Lanka? Is this not true? Is this not true? And why is this Honorable member. why is this government so scared of Adani? Why is this Honorable government so member, scared we of are going Adani? off the track here. We are going off the track here. And he should remember that he should talk on facts. Rule 110. Please speak on the Sir, bill. sir, Manya Nasir ji, sir, you are a I'm senior speaking on member. the bill, sir. Please speak on I'm the bill. If speaking you on go the bill. around, Sir, this is I am not- speaking on the bill. Yes, please. Adani has got 6 airports against the advice of Niti Aayog in this country. Against the advice of Niti Aayog. You'll When have to there are- authenticate all those. Sir, please allow me to speak, You sir. need to authenticate, Sir, that's yes, all. sir, that will be authenticated. Sir, please allow me to speak. When this person has got 6 airports against the wishes, against the advice of Niti Aayog, and there are bribery charges against this person from different countries, shouldn't we investigate in this matter whether this person has bribed to get these 6 airports? Shouldn't Honorable member, this is we regarding the investigate in aircraft this bill. member? This is Shouldn't we regarding the investigate in aircraft this? bill. We have to investigate. We have Honorable to member, this investigate is not within holistically. the provisions of the bill that we are talking about. Yes, Please, sir. Please This should continue. include. This should also be included. Please proceed. This should Please also proceed. be Please included proceed. in that. Please proceed. सर तो बिल पे ही मैं बात कर रहा हूं जितना ये सरकार दंडोरा पीट रही है जितना अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने इतने एयरपोर्ट्स बना दिए कि हमने इतना ये ट्रैफिक बढ़ा दिया तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं ये ट्रैफिक तो बड़ा है बड़ी कंट्री ये ट्रैफिक बढ़ेगा एयरपोर्ट्स भी बढ़ेंगे एयरपोर्ट्स पे कितने फाउंडेशन स्टोन्स कौन डाले थे वो भी पता है लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे जो मैं भी कह रहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे दिखाई देना चाहिए वो दिखाई देने के लिए तो टिकटें का रेट भी तो कम होना चाहिए आप इतनी मोनोपोली क्रिएट कर दिए हैं सिर्फ 2 एयरलाइंस के हाथ में सारे एयरक्राफ्ट्स हैं एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ दो इट्स मोनोपोलाइज्ड बाय ओनली 2 कंपनीज तो आपके हाथ में क्या रहा कैसा आप जो है हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में लेके जाएंगे एयरक्राफ्ट और एयर कैरियर्स are monopolized by 2 companies. Airports monopolized by 1 person. So how will you help the common man? How will you help the Hawaii Chapal wala? So what the Prime Minister says and what the senior ministers in this government says and what is happening is completely different, sir. So that is the reason why we are saying why only 1 person is being promoted in this industry. I'll not talk about other industries because we'll come to it later on when those bills come up. So why only 1 person is being promoted? Why 1 person is only being helped in this industry? When there are bribery charges against him. Honorable member, again don't we are you going think there on was that track. in Hindenburg report? You are saying so itself, nicely it was on the very bill. clear. Don't you think it is very clear in the fresh charges that have come up? What are the opposition parties asking for? We are asking for a joint parliamentary committee to investigate into Honorable the bribery member, charges again you are against this going on the person. other track. We also want to know Please come whether back these on the 6 topic. airports were, Under the scope were of the given to debate. him after taking bribe. Did he use the same mechanism, same tactics Honorable to get member, these 6 you're airports? not going on the... Say, why it is not going to Honorable this member, is related please. to sir this is related to aviation bill. You speak of the This is- aviation That's bill. what I'm speaking, sir. Sir, here is a person who has been indicted in bribery charges. So I am asking, when against the wishes of Niti Aayog, when 6 airports and finance ministry, against the wishes of Niti Aayog and finance You'll have to ministry, authenticate all that. now, when 6 airports have been given, we want to know whether this person has employed
the same tactics which he has done in that solar wala thing to get the 6 airports. We Honorable want this to member. be investigated. That is why We we have are 4 saying. more minutes. Let's come to the point. That is why we are saying we are very clear. We want to have a comprehensive discussion and investigation. Honorable member, the bill is not about any investigation. The bill is about Vayu Yan. Sir, please allow me to speak. See, that's why we say we want to have a comprehensive, think we'll have to move on. discussion. If you're And not going to also speak on the we bill, we'll have to demand move on. All opposition parties put together, we I'm demand sorry, I'll have that to there move should on. be a joint parliamentary committee this is not to going- investigate I'm the going to the bribery next speaker charges now. and also to Sri investigate Raghav the 6 Chaddaji, airports that were I think given. you are not on the topic. Nothing is going on record.